Hello student, in the previous video we have discussed the remainder theorem. The purpose of remainder theorem is to find the remainder without doing the actual division. Okay. Now with the help of that remainder theorem we can also check the divisor, means the polynomial which is the divisor is a factor of given polynomial. Yes, because if remainder is 0 then divisor is a factor of the given polynomial. Now today we discuss the factor theorem. It used to find the factors of the given polynomial. Okay, so now what is that? Now if Px is a polynomial of degree greater than or equal to 1, and if for a is a real number, which is a real number, now PA is 0, then x minus a is a factor of Px. This is the factor theorem. अब देखिए यहाँ पर Px is a polynomial जो उसमें रिमाइंडर थ्योरम में भी था. अब यहाँ फॉर अ वैल्यू फॉर अ रियल नंबर, किसी एक रियल नंबर के लिए पी ए वहाँ क्या था, रिमाइंडर था. अभी हमने यहाँ इसको रिमाइंडर नहीं बोला. पी ए इज 0. इफ पी ए मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर एनी नंबर becomes 0, then x minus a is a factor of px, and vice versa is also true. And x minus a is a factor of px, then pa must be 0. यदि ये फैक्टर है तो ये 0 होगा. ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है कि कोई एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तो ये एक फैक्टर थ्योरम है जिससे हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लिए जिसमें कि हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px. There are two polynomials. What is px? Px is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx is x plus 2. तो ये आपको चेक करना है कि x plus 2 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा. फैक्टर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो डिवाइजर है या जो पॉलिनोमियल gx है इसका 0 निकालना पड़ेगा. यहाँ से हमको एक वैल्यू मिलेगी x की और उसको हम यहाँ पुट करके देखेंगे. तो देखिए यहाँ पर क्या है, px is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and 0 of gx, that is x plus 2 is minus 2. यदि आप इस gx का माने जो जिसकी वैल्यू x plus 2 है इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, minus 2. अब हम क्या करेंगे, now since p minus 2 we replace x by minus 2 for this polynomial. So it becomes minus 2 whole cube plus 3 into minus 2 whole square plus 3 into minus 2 plus 1. We put the value of x minus 2. Now simplify it. This is minus 8. Then minus 2 whole square 4 into 3 plus 12. Now minus 6 plus 1. That is minus 8 minus 6 minus 14 plus 13, which is minus 1. Okay, so what is P2? P minus 2 is minus 1. This implies that P minus 2 is not 0. अब देखिए ये जो वैल्यू है ये 0 नहीं है. जब ये 0 नहीं होगा, PA is not 0, then x minus a will not be a factor. So here we write by using factor theorem, since p minus 2 is not 0, so therefore x plus 2 is not a factor of px, or you may write gx is not a factor of
px. So this is the way of writing the question. इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है. आपको p-2 निकालना है और वो 0 है तो वो फैक्टर होगा और 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं होगा. ये हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया है. चलिए हम कुछ और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे जो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है. Now in the question number 3 of exercise 2.4, find the value of k. K is unknown term. If x minus 1 is a factor of px, and what is px? Px is kx square minus under root 2 into x plus 1. Okay, so how we simplify this? By using factor theorem. यहाँ पर भी factor theorem का हम use करेंगे. Now since px is, we write the polynomial kx square minus under root 2 into x plus 1, and the 0 of this second divisor, which is the divisor, 0 of x minus 1 is 1. Okay, now what is given? Given that x minus 1 is a factor of px. x minus 1 is a factor of px. तो जो सेकंड पार्ट हमने लिखा था फैक्टर थ्योरम का कि if x minus 1 is a factor then p1 will be 0. So here, so by using factor theorem, p1 will be 0. ये जो 0 आया है 1, इसको पुट करने पर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0. नाउ पुट द वैल्यू k into 1 square minus under root 2 into 1 plus 1 equals to 0. So this becomes k minus under root 2 plus 1 is 0. We have to find the value of k, so we transpose these terms to other side. अब यहाँ पर देखिए एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, है ना. तो ये k की वैल्यू क्या होगी? k विल बी अंडर रूट 2, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया ट्रांसपोज करने पर, ये प्लस था तो ये -1 हो गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. ओके, सो दिस इज योर आंसर. k is under root 2 minus 1 in this polynomial, so x minus 1 will be a factor. Okay. Now अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्टर थ्योरम जो है वो हमको हेल्प करता है फैक्टर फाइंड करने के लिए. तरीका क्या है? जो पॉलिनोमियल है उसमें हम वेरिएबल को किसी एक वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और यदि वो वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देती है तो हमको एक फैक्टर मिल जाता है. ओके, तो ये एक प्रोसेस है. माने हमको वो वैल्यू को सोचना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा. ओके, बट यहाँ पर एक और अभी हम लोग नई मेथड की बात करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसमें हमें किसी वैल्यू को सोचना नहीं है, फाइंड नहीं करना है, एस्टिमेट नहीं करना है. हम डायरेक्ट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फैक्टर थ्योरम. पहले हम इसको समझें कि ये है क्या. एक ये पर्टिकुलर मेथड है जिसको हम अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे और उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे. अब देखिए यहाँ पर हम एज्यूम करें, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इट हैज मैक्सिमम 2 लीनियर फैक्टर. माने इसमें मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं? 2 फैक्टर्स. और वो कैसे होंगे? लीनियर होंगे, है ना. कभी मिले, कई बार ऐसा भी होगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है बट इट डजंट हैव अ फैक्टर. ओके, तो ये हम आगे देखेंगे, बट अभी हम पॉसिबिलिटी ये देख रहे हैं कि इसके 2 लीनियर फैक्टर होंगे. तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हैज 2 फैक्टर्स px plus q, this is the one factor, and rx plus s. These are the 2 factors of this polynomial. तो जब हमारे पास फैक्टर होंगे तो हम क्या करेंगे? इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो ये पॉलिनोमियल के इक्वल होगा. सो नाउ ax square plus bx plus c can be written as
in the form of product of these two factors. इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, पहले px इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा p into r x square, x multiplied with x square, and p multiplied with r, then px multiplied with s, so it becomes ps into x plus q multiplied with this, so qr into x plus qx, qs, q multiplied with s. Okay, now we combine the term, so this becomes pr into x square plus x is common to both, so we have ps plus qr, ये नंबर होंगे, into x plus q into s. ओके, अब यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में जो पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे, ऑन इक्वेटिंग द टर्म्स व्हाट वी हैव, a इक्वल्स टू पी आर, a की जगह पी आर होगा, इन प्लेस ऑफ b वी हैव पी एस प्लस क्यू आर, and in place of c we have qs, ये कांस्टेंट टर्म इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो। अब यहाँ देखिए हम a और c को मल्टीप्लाई करें, a और c को मल्टीप्लाई किया pr इंटू qs, और इसको रीसेटल करें, इनका प्रोडक्ट क्या होगा pq rs, यदि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करें तो pq rs इनका प्रोडक्ट होगा। अब देखिए ये जो मिडिल टर्म है ये ps प्लस क्यू आर है, तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हम इस तरीके से अरेंज करें कि वो इनके सम के इक्वल हो, माने इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो b मिलना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, p के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, s का, तो p इंटू एस इंटू क्यू इंटू आर, देखिए प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पी आर इंटू क्यू एस था, अब हमको प्रोडक्ट क्या मिल गया पी एस इंटू क्यू आर, और यहाँ पर ये टर्म जो है पी एस प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, बी के इक्वल आ गया, जो अभी हमने देखा। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से देखें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है माने यदि हम इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख लें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इससे हम कॉमन लेके ये लिख सकते हैं, तो यहाँ हमको फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके, माने अब ये समराइज करें हम इस पूरी प्रोसेस को, तो वो क्या है, इस कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल फॉर्म ये होगा, यहाँ पर हम a और c को मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम इस तरीके से फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे कि इनका सम जो है वो किसके इक्वल हो जाए, b के इक्वल हो जाए। ये देखिए इससे आपको समझ में आ रहा है, a और c को मल्टीप्लाई किया देन वी गेट अ नंबर। ओके, अब ये नोन है, फिर हम इसको इस नंबर को ऐसे दो फैक्टर्स में, ऐसे टू फैक्टर्स में हम लिखेंगे कि जिनका सम कैसा हो, b के इक्वल हो। हमने क्या किया, b को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, तो अभी ये जो सिंगल टर्म था ये टू टर्म्स में हो गया, तो अब ये कितने टर्म्स हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। फिर पेयर करके हम कॉमन ले लेंगे और आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको ज्यादा आसान होगा इसको समझना, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 4, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज इन दिस फॉर्म, ax square plus bx plus c. So here on equating 12x square minus 7x plus 1, we have what we have, a equals to 12, b equals to minus 7 and c equals to 1। जब भी आपको splitting the middle term यूज करना है फैक्टराइज करने के लिए, तो पहले हम ये जो पॉलिनोमियल है
उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उससे आपको ए, बी और सी मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हमने आपको ये प्रोसेस बताया इसको देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू सी इज 12 इंटू 1 दैट इज 12, माने ये आ गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे इनटू 2 फैक्टर्स और वो उनमें कंडीशन क्या होगी, इनका सम जो है वो b के इक्वल होगा, सम ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। अब देखिए 12 के फैक्टर्स, एक फैक्टर तो आपको मालूम है 12 इंटू 1, आप बिगनिंग से करके देखिए तो 12 प्लस 1 13 होगा, आपको कितना रिक्वायर्ड है -7। ओके, अच्छा अब ये 6 इंटू 2 यदि हम करके देखें तो 6 प्लस 2 8 होगा, तो ये भी हमारे फेवरेबल पार्ट नहीं है, माने हमारी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ +8 आ रहा है, आपको -7 चाहिए। यदि हम -6 और -2 करेंगे तो -8 होगा, आपको कितना चाहिए -7 चाहिए। तो अब यहाँ पर सेकंड क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 और 4 प्लस 3 7 आ रहा, लेकिन आपको क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड -7, सो वी take both the values are negative, -4 and -3, so their product is positive। देखिए यहाँ ये बात ध्यान रखना है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो both factors must be either positive or both will be negative। यदि ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो either first is positive or second is positive, one negative one positive। ओके, तो अब ये हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, since -4 प्लस ऑफ -3 is -7 which is equals to b। तो हमारा ये जो पार्ट था ये मिल गया, हमको क्या मिल गया, एक हमको मिल गया -4, एक मिल गया -3, और ये -4 -3 देयर प्रोडक्ट इज 12। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है आपको समझ में आ गया होगा। अब सो नाउ 12x square -7x plus 1 can be written as 12x square। अब हम ये जो मिडिल टर्म है -7x, इसको स्प्लिट करेंगे इन -4x एंड -3x, सो -4x -3x प्लस 1। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -7x होगा, कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। अब यहाँ देखिए कॉमन ले लें, 12 वी मेक द पेयर ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 टर्म्स, सो व्हाट इज कॉमन हियर, 4x इज कॉमन, सो वी हैव 3x minus 1, and here -1 is common, so we have 3x minus 1. Look at here, we have 3x minus 1 is common to both, so we take 3x minus 1 is common factor, so remaining will be 4x minus 1, so these are the 2 factors। So 12x square minus 7x plus 1 have 2 factors, 3x minus 1 and 4x minus 1। So this is the method of splitting the middle term। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको पहले ए बी सी फाइंड करना है, ए सी का प्रोडक्ट निकालना है, उसको फैक्टराइज करना है जिसका सम बी के इक्वल हो, फिर मिडिल टर्म को आप ये जो वैल्यूज हैं उनके फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे, देन वी गेट 4 टर्म्स, फर्स्ट 2 लास्ट 2 से कॉमन ले लेंगे और इस तरीके से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। आप बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नयापन लगेगा, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काफी इजी मेथड है। ओके, नाउ वी टेक another question of the same exercise 2.4, factorize x cube minus 3x square minus 9x minus 5। अब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 3 है, पावर इज 3, द पावर ऑफ x is 3, so its डिग्री विल बी 3। अभी हम लोगों ने ये देखा कि फैक्टर थ्योरम क्या है, फिर सेकेंड पार्ट में हमने देखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है, लेकिन जो मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। किसके लिए है? क्वाड्रेटिक के लिए, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 3 है, तो यहाँ पर ऐसे हायर डिग्री जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। कुछ ऐसे आइडेंटिटी बेस्ड हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरल जो मेथड है वो फैक्टर थ्योरम है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साथ में शॉर्टकट के लिए हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए हम दोनों चीज़ों का यूज करेंगे, दोनों
फर्स्ट फैक्टर थ्योरम का भी यूज करेंगे एंड देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। स्प्लिटिंग दैट मिडिल टर्म में फर्स्ट हम इसको एज्यूम कर लें, लेट पी एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ओके, ये पॉलिनोमियल हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या है कि इस पॉलिनोमियल में हम x को किसी एक रियल वैल्यू से रिप्लेस करें और वो रियल वैल्यू इस तरीके से हो, इन सच फॉर्म दैट इट मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, वो 0 कर दे। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, हमें सोचना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर एक आइडिया यहाँ से मिलता है कि ऐसे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स में जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कितना है -5, वैल्यू देखें तो 5। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और एक्चुअल वैल्यू -5 है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम सारे पॉसिबल factors लिखेंगे। We write all the possible factors. Okay, so here the constant term is 5 and its factors are plus minus 1 and plus minus 5। +1 भी होगा, -1 भी होगा, +5 होगा, -5 होगा। देयर आर ओनली 4 पॉसिबल फैक्टर्स। लेकिन कहीं कहीं मान लीजिए ये 20 होगा तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ 5 20 +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। तो ये अभी इस केस में आपको चाहिए, वी हैव 4 फैक्टर्स, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आर 4, बट इन सम केसेस दे मे बी मोर देन दैट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर, these factors gives us some idea, either you put +1 to here or put -1, +5 और -5। तो ये वैल्यूज जो हैं फैक्टर्स को पुट करके हमें इसको चेक करना है। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। अब जितनी वैल्यूज, जितने फैक्टर्स आ रहे हैं सबको हम चेक करके देखें किसमें हमको फैक्टर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर किसी एक में यदि हमको मिल गया, जैसे ये क्यूबिक है, एक कोई वैल्यू पुट करने पर ये 0 हो गया तो हमको एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर हम उसको फिर बाकी को ना रख के हम उसको स्प्लिटिंग द मिडिल, मतलब उसको और फैक्टराइज करेंगे और एक हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, एक लीनियर मिलेगा और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। देखेंगे आगे कैसे। यहाँ पर अब हम देखिए यहाँ पर ये क्या है, कोफिशिएंट्स कैसे हैं, ये सारे नेगेटिव हैं और केवल एक ही पॉजिटिव टर्म दिख रहा है। तो यदि हम +1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव, तो इनका सम कभी 0 नहीं होगा, है ना। तो अब हम -1 रख के देखें, माने जो पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है कि ये पॉसिबल नहीं होगा तो उसको हम चेक करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर p-1 हमने क्या किया, इसमें -1 रखा तो क्या होगा, -1 होल क्यूब -3 × -1 होल स्क्वायर -9 × -1 + 5। Now simplify this. This is -1, this is -3, +9, -5, and this becomes -9 + 9 is 0। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा एस्टिमेट कर लिया, IQ का यूज कर लिया कि +1 रखने पर तो ये सारे ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, यहाँ केवल +1 आएगा तो वो कभी 0 नहीं होगा। तो हमने +1 को चेक ना करके -1 को चेक कर लिया और हमको ये वैल्यू मिल गई। ओके, अब so by factor theorem x + 1 is a factor of px। देखिए p-1 is 0, so by factor theorem x + 1 is a factor of px, so we get one factor। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या होगा, we write this polynomial, so therefore x³ -3x² -9x -5, ये जो पॉलिनोमियल है, we write this polynomial into the form of x + 1 as a factor। माने यहां पर हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि हमको x + 1 एक फैक्टर मिलना चाहिए।
ओके, अब वो कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, ओके, इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर यदि होता तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे एक्स प्लस वन एक फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है और हमने प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा टर्म हमने कर दिया, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर हमने किया और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये कंबाइन होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये प्लस हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसको निगेट करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर पहले से था, तो इट बिकम्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब देखिए फोर एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस फोर एक्स यदि हम कंबाइन करें तो ये अगेन माइनस फोर एक्स कॉमन लेने पे एक्स प्लस वन एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए माइनस फोर एक्स यहाँ माइनस नाइन एक्स था, तो देखिए माइनस फोर यहाँ आ गया तो माइनस फाइव एक्स यहाँ रिमेनिंग होगा और ये माइनस फाइव, अब यहाँ पे माइनस फाइव कॉमन ले ले तो एक्स प्लस वन एक फैक्टर हो गया। तो अब यहाँ हमने सारे टर्म्स को अरेंज कर लिया एक्स प्लस वन एज ए फैक्टर और ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स प्लस वन एक फैक्टर हो गया, यहाँ से माइनस फोर एक्स कॉमन लिया तो x प्लस वन एक फैक्टर हो गया, यहाँ से माइनस फाइव कॉमन लिए तो x प्लस वन इज अ फैक्टर, सो वी गेट x प्लस वन इज अ फैक्टर इन ऑल द टर्म। So taking x plus 1 common, so what we have x square minus 4x minus 5, this is a quadratic polynomial और quadratic polynomial के लिए हमने क्या किया था, splitting the middle term किया था। तो यहाँ पर अब हम देखें इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए x plus 1 और यहाँ पर अब देखिए in place of a is 1, यदि हम यहाँ पर देखें a कितना है 1, b माइनस फोर और c कितना है माइनस फाइव, तो a इंटू सी कितना हो गया 1 इंटू माइनस फाइव विच इज माइनस फाइव। अब माइनस फाइव को फैक्टराइज करना है तो ये होगा माइनस फाइव इंटू वन, तो इनका सम क्या होगा माइनस फोर और प्रोडक्ट माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव। ओके, ये प्रोसेस आप कर सकते हैं और उससे आपको ये मिडिल टर्म को आपने माइनस फोर एक्स को हमने माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स में स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ देखिए x प्लस वन, नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, x इज कॉमन सो x माइनस फाइव and in the last two term plus 1 is common, so we have x minus 5. Now x minus 5 is common to both, so we take it common, so x minus 5 is common, so what is the remaining term, x plus 1. Now what we get 3 linear factor, we get 3 linear factor, that is this polynomial x cube minus 3x square minus 9x minus 5 have 3 factors, x plus 1, sorry यहाँ क्या था, x plus 1, x plus 1 and x minus 5. Okay, so we get 3 factors. अब यहाँ थोड़ा सा, अब ये जो पार्ट है थोड़ा यहाँ आपको देखने में सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको देख के आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि विच वैल्यू विल बी अप्रोप्रिएट। जैसे यहाँ पर हमने आपको कहा कि यदि सारे नेगेटिव हैं एक पॉजिटिव है तो वो पॉसिबल नहीं होगा नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने नेगेटिव वैल्यू पुट कर दिया। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब इनको यदि हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आपने पढ़े होंगे, उनको देखें तो ये 13 प्लस 13 और प्लस 20, प्लस 13 प्लस 20 33 हो गया और प्लस 32 और प्लस 1 ये भी 33 हो गया, माने दो का कॉम्बिनेशन जो है। अब यहां देखिए ये कैसे टर्म है, इवन पावर टर्म है, 2 और 0, यहाँ ऑड पावर्स है यहाँ पर, तो सम ऑफ इवन पावर टर्म, कोफिशिएंट्स ऑफ द सम ऑफ इवन पावर टर्म इज सेम एज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर टर्म्स। तो यहाँ -1 पुट करने पे आपको 0 मिलेगा। ओके, जैसे -1 और ये माइनस -32 -1 -33, ये +13 और +20, तो ये आपने एस्टिमेट कर लिया।
इस तरीके से आप चीज़ों को देखकर ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्लस रखने पे या -1 रखने पे आपको 0 मिलेगा। +1 -1 का एस्टिमेशन थोड़ा सा इजी है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये पार्ट मिल जाता है, लेकिन +2 +3 के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट था जिसमें हमने इनको फैक्टराइज कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने ये देखा कि व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, हाउ वी यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालिए और उन हमको ये एक ऑप्शन देता है कि हम सारी वैल्यू ना रख के अब +2 +3 रखने की जरूरत नहीं है, पहले हम इनको रख के देख लें। अब देखिए यहाँ पर -1 और -5, यदि आप यहाँ +5 भी रख के देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि x -5 इज अ फैक्टर। तो ये फैक्टर थ्योरम का यूज है। फिर हमने एक और मेथड देखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। Splitting the middle term help us to find the factors of quadratic polynomial, जो हमने यहाँ पर करके देखा है ना। तो आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल भी है क्योंकि ये 9th में तो आपके सिलेबस में है। इट हेल्प अस फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो in 2 different chapters in polynomials and the quadratic equation। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देके इसको करना है, ओवरलुक नहीं करना है। सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लीजिए, सारे एक्सरसाइज के कर लीजिए और कुछ आप अपने मन से भी क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं और उनको सॉल्व करके देखिए। ओके, थैंक यू।